How are you? Fine. Good. So yesterday we discussed about the important and we can say valuable two resources, land and soil, and why these are very important, why resources are depleting, what conservation methods we should adopt to stop all types of depletion. We already discussed all the things. And once again, today we will discuss a new resource that is very, we can say, essential for our survival. That is, yesterday I have already started, but once again we will go thoroughly about this resource, water. As you know that we everybody know that water is very essential, and without water we cannot live. So water is valuable and precious. But sometimes we think that it is the water is in abundance on the earth. Yes, it's also true. बहुत पानी है यहाँ पर. हम कहते हैं हमारा तो जो अर्थ है उसपे 3/4 वाटर है और 1/4 क्या है, अर्थ है. But in spite of that, we sometimes we hear about the scarcity of water. हम कई बार पानी की कमी, पानी कम आना, गर्मियों में स्पेशली पानी का कम होना, ये बहुत जनरल चीजें हमको सुनने को मिलती है और हम लोग देखते भी हैं सारी चीजें. So we have to, what are the basic reasons behind the scarcity of water? We have to understand, because you are children and this is your age. If you understand the concept of all the basic reasons behind the depletion of these resources, in future you will make some more efforts to conserve all these resources. अभी तो हम स्कूलों के अंदर प्लांटिंग है, प्लांट्स लगाना है बच्चों को, एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, जो है एनवायरमेंट कंजर्वेशन के बारे में बताते हैं. वाटर जो है घर पे भी हम लोग देखते हैं कि जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे जुडिशली यूज करना है हमें घर पे भी सिखाते हैं. That's why, because you are a very can say that you are very soft. कहते हैं ना मिट्टी जो नरम होती है उसको जिस तरह से ढालते हैं वो सीख सीख जाते हैं बच्चे. दैट्स इट्स योर लर्निंग टाइम दैट यू कैन लर्न सो मेनी थिंग्स इजीली. अगर आज हमको कोई नई चीज सिखाने की कोशिश करें तो थोड़ी मुश्किल आती है क्योंकि हमें स्टिफनेस है. So that's why today we are going to discuss about the why water is very precious and how we can conserve this water. So what are some facts are here? These are facts. You and me cannot change. So what are these facts here? That as we know that Earth is covered by 3/4 part is covered by water, and in this the 2/3 is ocean covered. Yeah, everybody know that 5 oceans are there. 5 oceans are there. So these oceans, they covered the 2/3 part of this earth. And others are, like we can say, seas and rivers, they covered another ratio. So after which we can say that this is a very large part that is covered by water. So why we face so many problems of water crisis? So there can be some reasons. Another fact is that in this only 2.7% water is considered fresh water. Only 2.7. And this 2.7% fresh water, in percent we can say that in this 70%, 2.7 years, 70% of this water, उसमें से this is in ice sheets and glaciers. Ice sheets and glaciers, as you know, that is very inaccessible areas. जहाँ पर हम लोग नहीं जा सकते हैं. Those are inaccessible areas. जैसे कि हम लोग जो है अगर हिमालय जिसके बारे में हम आप सब लोग जानते हैं, नॉर्दर्न एरियाज, वहाँ पर ग्लेशियर्स और वही मेल्ट होकर क्या बोलते हैं रिवर्स का सोर्स ही वही है. तो ये जो आइस शीट्स है ये हमारे लिए कैसे यूजफुल हो सकती है? क्या हमें अगर पानी पीना है तो हम इतनी ऊपर थोड़ी ना जाएंगे लेने पानी को, हमें जरूरत है तो we cannot reach there. That's why it is also not useful for us. Whenever the glaciers are melted and this water comes in rivers, then we can use them. So in this way, so we cannot say that all the water which are in ice sheets and glaciers are useful for human beings.
So in the last, we say that only 1% fresh water is available. Just imagine that a large population in India is here, but only 1% of water is available. और उसको भी हम कैसे यूज कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली कर रहे हैं, अनजुडिशली तरीके से कर रहे हैं, पानी का हम ध्यान नहीं रख रहे हैं, उसको इस तरह से यूज कर रहे हैं. तो कहने का मतलब है कि वाई दिस आई एम जस्ट डिस्कसिंग फैक्ट्स विद यू एंड दिस इज ऑल्सो इन योर टेक्स्ट बुक टू मेक यू अवेयर of using this fresh water judiciously. Then through this, if we start to use this water judiciously, then we start to conserve water and we will not face the water scarcity problem. तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इस चीज से. Where this fresh water is, we can found, like you know, everybody know that surface water, like rivers. You see that there are very rivers, lakes are there, type forms of in these forms the water is available. Underground water, you also heard about underground water. This is also a fresh water. So in this way, that water is available in these resources, these reservoirs, but sometimes these are not sufficient to fulfill the human needs and wants. And what can we do? अब हम क्या कर सकते हैं? So that's why we have to take some steps. This we will discuss later. What are the uses of water? Why we say that water is very precious? तो छोटे बच्चों से पूछ रहे हैं कि पानी का क्या यूज है, तो वो बहुत फटाफट बता देंगे कि वाटर, पानी जो है वो हमारे ड्रिंकिंग, बाथिंग, छोटी क्लासेस में ऐसे ही तो सिखाते थे कि वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, washing. And here we also understand that these we can use water for several purposes. When I start class, I told you that without water we cannot survive. That's why this earth, that is why this earth is called we can say that is very suitable for living human beings because of the presence of water. Sometimes you also hear about the earth is also called the blue planet because of the presence of water. So that's why the uses of water here, that very common here, like irrigation, agriculture purposes, for industries, for factories, for washing, drinking, bathing, everyday users also there. So without water, we cannot think a single step that we can take. That's why always we think about that that without the water is very essential for the development of a nation also, because all the activities these are totally depend on water. So water is very after that, the uses of water. Why we face a scarcity of water? What is the reason? Because there are so many reasons that we face a scarcity of water because of the increasing population. Demands are increasing. एक फैमिली में 4 पर्सन रहते हैं तो उनकी वाटर जो कहा जाए रिक्वायरमेंट होगी वो 6 पर्सन से कम ही होगी. और इस तरह से बट यू सी दैट पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. तभी तो हम जो है सेकंड रैंक पर आ गए हैं इंडिया, चाइना के बाद. तो कहने का मतलब ये है कि अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है. अर्बनाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस अर्बनाइजेशन? That rural people, they are moving to urban areas and start to living there. This is called the urbanization. और urban areas में तो और ज्यादा water scarcity है क्योंकि we are totally dependent on tap water. हमारे पास कोई ऐसा कुछ नहीं है और कोई साधन नहीं है वहां पर देखने के लिए कि चलो पानी मतलब कुएं से निकाल लें, हैंड पंप से निकाल लें, नहीं. तो ये सारी चीजें फिनोमेना हमें रूरल एरियाज में दिखता है. तो हमने increasing population and urbanization, infrastructure, buildings, factories, industries, day by day these are also just developing. It's good for the nation, economic nation also कि अच्छा है हमारे देश का आर्थिक विकास हो रहा है. बट इनके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? वाटर ज्यादा यूज करना पड़ रहा है. तो वाटर ज्यादा यूज करना है, अब हमें उसके क्या करने पड़ेंगे? कुछ ऑल्टरनेट देखने पड़ेंगे कि हम जो है इसको कम से कम यूज करके हम अपनी वांट्स को भी पूरा कर सकते हैं.
तो दिस इज रीजन ऑफ द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। ये तो हमारा हो गया, हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और ये सब अर्बनाइजेशन। इसके साथ हम नेचुरल रीजन भी जो है ऐड कर सकते हैं। व्हाट आर द नेचुरल? बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल। अब हमें आर्टिफिशियल इरिगेशन की बात क्यों करते हैं? क्योंकि रेनफॉल जो है सर्टेन ही नहीं है इंडिया में। मॉनसून इन ऑलवेज वी कैन से गैम्बल इन इंडिया। भारत में मॉनसून को क्या कहते हैं? गैम्बल कहते हैं कि कभी ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, कभी टाइम से आया, कभी नहीं आया। तो दिस इज ऑल्सो रीजन ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। जब पानी ज्यादा, बारिश ज्यादा होती है तो सारे हमारे जितने रिजर्वर्स है वो फुल हो जाते हैं, खूब पानी होता है। तो हम ये डैम्स वगैरह क्यों बनाए जाते हैं? दीज डैम्स आर ऑल्सो जस्ट बिल्ड टू कंजर्व वाटर, पानी को कंजर्व करने के लिए फॉर फ्यूचर। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द रिसोर्स डेवलपमेंट। इन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हमें इन अनदर लैंग्वेज वी कैन से हाउ वी कैन or what steps can be taken by a person to or the country for the resource development. So these are the steps जहाँ पर डैम्स से बनाकर क्या किया जाता है? वाटर को रिजर्व किया जाता है। जैसे कि हमने ये कहा कि एनर्जी के लिए हम दूसरे ऑप्शंस का यूज करते हैं, सोलर है, विंड है, ये सब इस तरह से। अब हम बात करें वाटर की बात कर रहे हैं, तो वाटर की बात में हम यही कह सकते हैं कि नेचुरल फैक्टर्स दिस इज आल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबल। समटाइम्स फ्लड कंडीशन होती है तो भी नुकसान, लैंड सॉइल सबका नुकसान हो जाता है। और कई बार जो रेनफॉल कम होता है तो फिर ड्रॉप कंडीशन आ जाती है। और जो है इरिगेशन, वो भी एक पर्पसेस है वाटर स्कैर्सिटी का। कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर ओवर इरिगेशन हो जाता है तो उससे सारी चीजों को नुकसान होगा, लैंड को भी होगा, सॉइल को भी होगा। तो ये नेचुरल जो है टोपोग्राफी रीजन भी हो सकता है वाटर का। वाटर टोपोग्राफी कैसे होता है? जैसे कि हमने कहा कि डेजर्ट एरिया है तो वहां पर क्या है? डेजर्टिफिकेशन ज्यादा है, वेजिटेशन कम है, तो वहां पर वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलेगी। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जहाँ पर बहुत ज्यादा वाटर स्कैर्सिटी देखे, तो कहने का मतलब माउंटेनेंस एरिया में देखिए वहां पर तो चलो ठीक है वाटर रिसोर्सेज है, रिवर्स वगैरह, तो वहाँ पानी आता है। But on the other hand, we see sometimes of scarcity of water in these areas also because of the another reasons also, like वहाँ पर क्या होता है? रेनफॉल नहीं होती है, रेनफॉल नहीं होती है वहाँ पर क्या होता है? स्नोफॉल होती है। तो वो क्या पानी स्नो काम आएगी क्या? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वाटर स्कैर्सिटी के नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स दोनों हैं। उसके हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। अगर हम पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज पे नजर लगाएं, देखें, एक ओवरव्यू लें, तो हम ये नहीं कहेंगे कि केवल इंडिया की वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम जो है केवल इंडिया में है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। जैसे कि हमने अफ्रीका के बारे में पढ़ा, साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ा है ना। तो इंडिया तो है ही, चाइना, तो ये बहुत सारी ऐसी और कंट्रीज के बारे में आपकी बुक में लिखा हुआ है जहाँ पर वाटर स्कैर्सिटी है। और स्पेशली जो वाटर जो इनमें यहाँ पर आइलैंड कंट्रीज जो हैं वहां पर आपको जो है वाटर है, बट उनके उससे होने से जो दूसरी कंट्रीज में स्कैर्सिटी है उसको नहीं पूरा किया जा सकता। तो दिस इज द रीजन दैट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो all the spheres in all the major countries the water is not available equally, like Africa, West Asia, South Asia, parts of Western Asia, USA, in Mexico, these are the areas where the water facing water shortage. अब वाटर शॉर्टेज का रीजन मैंने अभी आपको बताया, सीजनल वेरिएशन इन रेनफॉल बताया मैंने आपको, और ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर। ये रीजन हो सकते हैं कि क्योंकि ये जो एरियाज हैं जो वर्ल्ड की हम इन कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये यहाँ वैसे तो देखा जाए तो ये डेवलप्ड एरियाज है, यहाँ डेवलपिंग इन इकोनॉमिक सेंस। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल यहाँ पर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्री। तो जितना ज्यादा जहाँ पर डेवलपमेंट होगा नेचुरल रिसोर्सेज को उतना ज्यादा यूज किया जाएगा। ओवर एक्सप्लॉइटेशन का, ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा तो चाहे आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा फिर भी स्कैर्सिटी होगी। पानी कितना खरीद के पियेंगे, चीजों को कितना खरीदेंगे? अगर जब अवेलेबल होगा तभी तो मार्केट में अवेलेबल होगा तभी तो खरीदेंगे। तो दैट इज द रीजन ऑल्सो कि इन एरियाज में जिसको हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं वहां पर भी आपको जो है वाटर स्कैर्सिटी मिलेगी बिकॉज ऑफ दीज रीजन। ठीक है। प्लस कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कंटेमिनेशन वाटर सोर्सेज? कंटेमिनेशन किसको कहते हैं? कोई पानी बहुत टाइम तक एक जगह पे रहता है तो वो खराब हो जाता है। तो जो इन कंट्रीज के अंदर हम देखते हैं, क्योंकि बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड डेवलप्ड कंट्रीज, so because of these developing process they use
so many they overexploit these resources. अब वो जो पानी है वो काफी टाइम तक नहीं पाया जाए. दिस वाटर we can say where the chemical is also dissolved in this and these effluents they pour in the rivers. इन सारे में जिनमें केमिकल है वो वाटर कहाँ डाल देते हैं, नदियों में डाल देते हैं. तो वो क्या है, वाटर पोल्यूशन. तो वो वाटर भी काम का नहीं रहेगा, है ना. तो ये सोर्सेस को क्या है कि जिनका पानी का समझ लीजिए फैक्ट्री से एफ्लुएंट्स निकाले वो वहीं पर रह गए, तो वो पानी को क्या ट्रीटमेंट नहीं किया तो कंटेमिनेटेड वाटर हो गया, तो उससे और ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी, बीमारियां बढ़ेगी. इन दिस वे वी से दैट देयर इज आल्सो प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. अब इन सारी प्रॉब्लम्स के बाद हम बात करते हैं, क्या बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. तो क्योंकि हमने क्या देखा, यूजेस देखा, सब कुछ देखा. अब हम बात क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं. कंजर्वेशन के लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें ये हमने अभी तक देखा कि वाटर पोल्यूशन क्यों होता है, उस पोल्यूशन को रोकने का तरीका क्या है. सबसे पहले तो हम वाटर स्टॉप वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन को स्टॉप करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि जो फैक्ट्री और इनके जो एफ्लुएंट्स होते हैं उस वाटर का क्या होना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए. वो ट्रीटमेंट के बाद ही इसको रिवर्स में डालना चाहिए. तो इससे क्या होगा कि वाटर का पोल्यूशन रुकेगा. बिफोर और ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उनको सेटअप करना चाहिए. प्लस गवर्नमेंट को जो है स्ट्रिक्ट स्टेप उठाने चाहिए इसके लिए. तो सबसे पहले हमें रोकने के लिए पहले क्या चीज करनी पड़ेगी, हमें वाटर अवेलेबल है लेकिन पोल्यूटेड है तो भी काम का नहीं है ना, तो उस चीज को रोकना होगा. उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आपको कि सेकेंड थिंग, प्लांट, मोर प्लांट should be grown. अब मुझे बताइए कि वाटर का इससे क्या रिलेशन है. इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्लांट्स एंड वाटर? यस, बिकॉज यू सी कि जब भी रन ऑफ जो सरफेस वाटर होता है वो वाटर अगर हमारे यहाँ पर प्लांट्स ज्यादा होंगे तो वो वाटर क्या होगा, सॉइल में जाएगा. ठीक है, और सॉइल में होगा तो वो वेजिटेशन क्या होगी, वो वेजिटेशन होगी. तो वो वाटर क्या होगा, आगे जाने से, वेस्ट होने से बच जाएगा. जो सरफेस रन ऑफ वाटर है वो वेस्ट होने से बच जाएगा. तो दिस इज द सेकेंड स्टेप. ठीक है. थर्ड आपने सुना होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सुना होगा. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें जैसे कि स्पेशली इट इज यूजफुल इन राजस्थान एरियाज, है ना. जब भी रेन आती, क्योंकि सबसे ज्यादा जहाँ पर नॉट ओनली राजस्थान, जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मियों में पानी की कमी रहती है और मानसून टाइम आने वाला है, तो जो गाँव में स्पेशली देखेंगे हम लोग राजस्थान के, वहां पर आप देखेंगे कि लोगों के घरों में जो है एक जिसको कहते हैं टांका बना होता है, टांका. और उस टांके में क्या होता है, टांका क्या होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ मैं आपको. ये राजस्थान के जो घर वगैरह होते हैं ना, उनके घरों में ओपन एरिया होता है, जैसे आंगन होता है ना जिसको हम बोलते हैं जब एंटर करते हैं. आजकल तो क्या है, घर कवर है. तो वो टांका जो है वो उसको इतना बड़ा टंकी टाइप होता है, उसको बना देते हैं और उसको घर के अंदर बना देते हैं. और जब रूफ होता है ना, जहाँ रूफ, उस रूफ से उसको पाइप को कनेक्ट करके वो पानी जो होता है रेन का, ये पानी जो होगा ना वो यहाँ 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 इसके यहाँ पर एक जाली सी लगी होती है, इस टांके में कलेक्ट हो जाता है वो पानी. तो ये दिस इज ऑल्सो वी कैन से रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन टांका. और अगर और दूसरे ले सकते हैं कि जैसे रूफ टॉप, इसको कहते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं, जहाँ पर रूफ के अंदर छत होती है ना, छत से सीधे पाइप को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं. पीवीसी पाइप होता है उससे कनेक्ट कर देते हैं. उस पाइप के थ्रू क्या होता है, पानी जो होता है उस टंकी में बड़े सारे एक कमरे जितना बड़ा होता है उसके अंदर पानी को
कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया। इसके अलावा हम और भी जो है स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि कैनाल डैम्स का यूज करते हैं, डैम कंस्ट्रक्टिंग, उसमें क्या करना होगा, कंस्ट्रक्टिंग डैम्स जो होंगे, जो रेन वाटर होगा वो कलेक्ट होता जाएगा, तो ये पानी जो होगा इसमें क्या होगा, स्टोर करके रहेगा, ये रिजर्व हो जाएगा, रिजर्व फॉर फ्यूचर। ठीक है, और इसके अलावा हम इरिगेशन, नए नए इरिगेशन मेथड्स का यूज कर सकते हैं। अब आपने सुना होगा स्प्रिंकलिंग इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, है ना, ये स्पेशली जहाँ पर बहुत ज्यादा वाटर स्कैर्सिटी है, खेतों में अगर पानी आजकल आपको देखने को मिलता होगा, स्प्रिंकलिंग तो हर जगह देखने को मिल जाती है। एक बैम्बू इरिगेशन भी होती है, वो आसाम, हिमालय, उस एरिया के अंदर जहाँ पहाड़ी इलाका है वहां पर होती है। तो ये जो इरिगेशन सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलिंग हो गया, तो स्प्रिंकलिंग में वाटर कम यूज होता है और पानी फैलता है उससे। ड्रिप के अंदर एक एक बूंद से, जहाँ पर राजस्थान जैसे एरिया जहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्कैर्सिटी है, वहां पर इन सब चीजों का यूज किया जाता है। जो एक बूंद बूंद कहते हैं ना सिंचाई, उससे जो है उसको करने की कोशिश की जा रही है कि भाई जो है पानी को बचाया जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं। प्लस सबसे बड़ी बात है कम्युनिटी अवेयरनेस। उसमें अगर हम लोगों में अवेयरनेस होगी तो कुछ हद तक, देखो एक तो गवर्नमेंट लेवल है, these are, we can say that steps are taken by to conserve the water resources, it is through the government efforts, but on the community efforts we can say that we should also understand the value of this precious रिसोर्स एंड अपनी अवेयरनेस से बच्चों के अंदर अवेयरनेस लानी, बड़ों में लेकर आना और तरीके ढूंढने कि खुद, पता है क्या है, जब इंसान कहते हैं ना खुद ही आविष्कार की जननी है, इसको कहा जाता है कि इंसान जो है, व्यक्ति जो है, खुद ही नई नई चीजों को जो है इन्वेंट कर सकता है, इन्वेंट कर सकता है। तो इनोवेशन किससे शुरू होता है, ह्यूमन बीइंग से ही। अब आप ये देखिए कि थोड़े थोड़े तरीकों से आप पानी को बचा सकते हैं। कूलर के पानी को कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई पानी टैप में से पानी है तो उस पानी को, बाल्टी अगर भर गई तो उसको कैसे यूज करना है, मटकी के नीचे वाला पानी है तो उसका कहाँ पर यूज करना है। तो ये हमारे घरों के अंदर भी हम चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। So today we discuss about this valuable resource, which is water. After that, we will now move to the next resource, that is natural vegetation and wildlife. What do you mean by natural vegetation? Natural vegetation हम किसे कहेंगे? Different types of vegetation you see around you. नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ बाद में डिस्कस करेंगे। नेचुरल वेजिटेशन दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। Whenever we see, you everybody every day you see nature. What is the nature? नेचर, प्रकृति क्या है? जो सेल्फ को अपने आप से विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, जिसमें हमारा कोई योगदान नहीं हो, जिसमें हमारा कोई इंटरवेंशन नहीं हो, वो नेचर। ठीक है, हम बाहर कहीं जाते हैं, पेड़ देखते हैं, गार्डन देखते हैं, बहुत सारे ऐसे वेजिटेशन देखते हैं, और यूं का ऑर्किड्स देखते हैं, ये सब हमारी क्या है, नेचर है। और ये नेचर जो है कुछ तो नेचुरल होता है, कुछ ह्यूमन बीइंग के इंटरवेंशन से होती है ये वेजिटेशन, ह्यूमन इंटरवेंशन। अब नेचुरल जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, दोज विच आर ग्रोन देमसेल्व्स, है ना, अपने आप ही। जैसे फॉरेस्ट है, अगर हम फॉरेस्ट में देखें, जंगल क्या इंसान ने बनाया है क्या? नेचर ने खुद ने, नेचुरली। अब नेचुरली किससे होगा, कोई फैक्टर्स होंगे उसके लिए, तो उसके लिए है सुटेबल फैक्टर्स, सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, सुटेबल फिजिकल फैक्टर्स कह सकते हैं।
वो फिजिकल फैक्टर्स में क्या आता है, टोपोग्राफी आता है, सॉइल, क्लाइमेट, रेनफॉल, ये सारी चीजें। तो नेचुरली जो चीजें ग्रो करते हैं उसे कहते हैं नेचुरल। और जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन शुरू होता है वो भी कहलाएगा तो वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि ग्रोथ तो अपने आप ही होती है, हम तो उसका बेस तैयार करते हैं। जब हम प्लांट्स लगाते हैं तो आप मुझे बताइए उन प्लांट्स के अंदर आपने बीज डाला, फिर कभी मैन्योर भी डाला, फिर पानी दिया रोज उसके अंदर, तो प्लांट्स हो जाते हैं। तो these plants are also considered as natural because ग्रोथ तो नेचर नहीं की ना, उनकी नेचुरली हुआ ये, इस वजह से। तो हम जो एक बात करते हैं कि हम अपने चारों तरफ देखो, अपनी अर्थ के ऊपर 3 डोमेन्स है। 3 डोमेन्स कौन से हैं बच्चों? 3 डोमेन्स। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर, फिर हम बात करते हैं लिथो, और फिर बात करते हैं एटमोस्फियर। जहां पर ये तीनों चीजें एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है वहां पर क्या होता है, बीच में बायोस्फीयर होता है। बायोस्फीयर मतलब जहां पर लाइफ है, जहां प्लांट्स है, वेजिटेशन है, फ्लोरा फोना है, यूं कह दें। तो ये 3 रिलेम्स जो अर्थ के हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक रिलेम भी इसमें से नहीं है, एक डोमेन भी अर्थ में अगर हाइड्रो नहीं है तो बायोस्फीयर पॉसिबल नहीं है, लिथो नहीं है तो भी ये पॉसिबल नहीं है, और एटमोस नहीं है तो भी। तो ये जो नेचुरल वेजिटेशन जो हम देख रहे हैं वो कहाँ पर है, इस बायोस्फीयर में। Got you? Okay. अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बायोस्फीयर है, प्लांट, देखो ये तीनों डोमेन जो है, हम इसलिए हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड, है ना। और ये इंटर रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर हमारी लाइफ सपोर्ट हो रही है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, ये तीनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारी लाइफ सपोर्टिंग हो रही है, तो जिससे क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। क्या कहते हैं, life supporting, where these 3 domains they interact each other, they are interdependent, and where the life is possible, that is biosphere, it is known as a ecosystem. तो ये इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम में क्या आएगा, फ्लोरा फौना, मैंने अभी बताया आपको, वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि हम बात करते हैं कि ये एक दूसरे पे कैसे है। अब हमें पता है कि वाइल्ड लाइफ नेचर पे डिपेंड है, और नेचर किस पे डिपेंड है, वाइल्ड लाइफ। बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। वाइल्ड लाइफ कैसे नेचर पे है, आपको पता है, वाइल्ड लाइफ यानी एनिमल्स, ठीक है, स्मॉल जैसे हम कहते हैं बहुत ही ज्यादा जिसको कहते हैं ना स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ये सब किस पे डिपेंड है, नेचर पे, क्योंकि इनको अपने सर्वाइवल पे के लिए किस पे डिपेंड रहना पड़ता है, नेचर पे रहना पड़ता है। अब आप छोटे क्लासेस में पहले ही पढ़ते थे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, है ना, ओमनीवोरस, 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर देयर। तो चाहे वो हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनीवोरस है, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है, छोटे छोटे जो जिनको हम ज्यादा मतलब काउंट नहीं करते हैं, लेकिन दीज आर बेसिकली दे जस्ट आल्सो सस्टेन देयर लाइफ बिकॉज ऑफ नेचर। इनका पूरी लाइफ किस पे डिपेंड है, नेचर पे डिपेंड है। और अगर हम ये बात करें कि नेचर कैसे वाइल्ड लाइफ से है, तो वो आप बताइए नेचर कैसे वाइल्ड लाइफ से है। तो अगर हम बात करते हैं कि नेचर जो है वो पूरी तरह से वाइल्ड लाइफ से ऐसे है कि नेचर यानी वेजिटेशन की ग्रोथ किससे हो रही है। आपने अपने फूड साइकिल पढ़ा होगा, फूड साइकिल पढ़ा है, उसमें हमने लास्ट हमारा क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स होता है,
जो ये एनिमल्स एक दूसरे को खाते मारते हैं, तो लास्ट में जो बचता है, जो हम यूँ कहते हैं रिमेन्स ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, ये फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं, और ये फॉसिल्स क्या काम आते हैं वापस प्लांट की ग्रोथ में। तो ये एक प्रोसेस चलता है कि वाइल्ड लाइफ नेचर पे और नेचर वाइल्ड लाइफ पे है, ये पूरा प्रोसेस चलता है कि किस तरह से ये इंटरडिपेंडेंट है। नेचर अपनी ग्रोथ कहाँ से करेगा, उससे भी वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ का तो प्रोटेक्शन है ही पूरा नेचर। जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो है बहुत सारे एक्ट बना दिए गए हैं, जिसमें से एक फॉरेस्ट एक्ट भी है, एक किलिंग ऑफ एनिमल्स प्रोहिबिशन एक्ट भी है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन की ये जो नेचर है, ये ही इन एनिमल्स का पूरा प्रोटेक्शन हैबिटेशन की जगह है। और दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो नेचर जो है वो भी अपना जो का जो न्यूट्रिएंट्स हैं और ये सारी चीजें किससे मिलती है, उससे वाइल्ड लाइफ से। तो दीज बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। तो हमें ये समझ में आ रही है कि ये कैसे किस तरह से एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। अब बात करते हैं कि प्लांट्स हमें क्या देते हैं, व्हाट प्लांट्स गिव्स अस। अभी तक तो हमने एक जनरल व्यू देखा कि चीजें एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट कहते हैं। प्लांट क्या प्रोवाइड करता है, व्हाट प्रोवाइड्स प्लांट्स टू अस। तो हम अगर देखें तो प्लांट्स हमें क्या देता है, लाइक दे प्रोवाइड, सबसे पहले तो बात करें तो फूड, है ना, timber, रॉ मटेरियल, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो जिसको हम छोटी छोटी अगर डेली उसमें अगर हम इस चीज को एनालिसिस करें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से ये वेजिटेशन जो है। अच्छा, प्लांट्स जिसमें हम ट्रीज हैं, शेल्टर, मेडिसिनल जो हर्ब्स वगैरह होती है, अभी तो हम पूरी तरह से इन्हीं पे डिपेंड है ना। जो ये चल रही है प्रॉब्लम, जो कहते हैं ना काढ़ा पियो, तो इसमें क्या प्लांट्स में तुलसी नीम का तो सबसे ज्यादा हम यूज कर रहे हैं। तो हमारे जो सर्वाइवल है वो इनके ऊपर हो गया है ज्यादा। तो in this way numerous benefits that we take, numerous things that we obtain from plants. So in this way we say that these are also very helpful for human sustaining human life, not only human but also we can say that wildlife. Now on the other hand we see now here what is the uses of wildlife. Now there is a question that arises here. Okay, question arises here that what is the how this wildlife is useful for a human being. क्या ह्यूमन बींग्स को वाइल्ड लाइफ से क्या मिलेगा? तो यू सी दैट नंबर ऑफ अनदर थिंग्स वी आल्सो ऑब्टेन फॉर वाइल्ड लाइफ। अब आपको पता है जैसे कि रॉ मटेरियल्स हमको इनसे मिलते हैं, है ना। रॉ मटेरियल जैसे कि हम कहते हैं कि दिस इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड, लेकिन कई चीजें जो है यूँ कहा जाए, जैसे कि हमने कहा वूल, वूल हो गया, सिल्क हो गया, लेदर की जो चीजें बनती हैं वो सारी, ठीक है, इवन फूड ऑल्सो। These are say that we can say wildlife also provide us so many things that are useful for us. Ab, what is the duty of men? Tomorrow we'll discuss its remaining part. Tomorrow we discuss its remaining part, and whatever we discussed yesterday and previous day and today also. If you have any question and query regarding these topics, you can ask right now.